students, welcome to biology class of Strategist. Today we will study the chapter how do the organism reproduce, and in today's class the topics which will be covered, these are puberty, the puberty age individually in males and females, what are the changes that are occurring during this time of puberty individually in males and females separately, and about the reproductive system separately, also male reproductive system and female reproductive system, and lastly how the fertilization or the formation of zygote takes place. But before we proceed, let me remind you about our social media platforms. As you can see on the screen that this is our YouTube channel Strategist Academy. Do subscribe our channel, like our Facebook page, join our Telegram channel. The link is provided here and it looks like this. Here you can check out our name of the channel, that's Strategist School 7 to 10. In this channel you will be getting each and every updates about our live classes and the study materials. So do join this channel, follow us on Instagram, and you can also join us through WhatsApp community. The number is displayed over the screen, and for more updates don't forget to visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our free app of Strategist is available. It looks like this. It's a very user-friendly app, and through this app the live classes are being conducted. So this user-friendly app must be downloaded and install it now. This is how our YouTube channel looks like. As I told you earlier, do subscribe our channel, and after that don't forget to hit the bell icon to get instant notification of our recently uploaded videos. And this is how our Facebook page looks like. Like us on Facebook too to be united with us continuously. So without any further delay, let's move on to our topic. So first topic is puberty. What is it? What are the factors? Is puberty different in male as well as females? ये सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे. Alright? So what is puberty basically? The age at which the sex hormones and the gametes begin to be produced and the boys and girls become sexually mature. That means they will be able to reproduce. That particular age is known as puberty. As you can see here, in case of boys and in case of girls, the puberty ages, that time period brings lots and lots of changes, external as well as internal. तो puberty क्या है? जिस age में boys and girls sexually mature हो जाते हैं and they are capable of reproduction. That age, that time period is called puberty. Okay? अब ये puberty जो है बॉयज एंड गर्ल्स में डिफरेंट एजेस पे देखा जाता है. ऑलराइट, देखा जाए तो दिस प्यूबर्टी स्टार्ट्स अर्लियर इन फीमेल्स. गर्ल्स में पहले होता है, आफ्टर दैट बॉयज में वो देखा जाता है. तो अब देख लेते हैं कि कौन से एजेस में बेसिकली प्यूबर्टी एज हम लोग कहेंगे. इन केस ऑफ बॉयज द एज ऑफ 13 to 14, 13 से 14 साल जो होते हैं, दिस एज इज कंसिडर्ड टू बी द प्यूबर्टी एज. एंड इन केस ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स द फीमेल्स, 10 to 12 years. So as I said earlier कि girls में ये earlier आते हैं, तो definitely 10 to 12 years is the earlier age, and 13 to 14 1-2 साल बाद वो boys में आना शुरू होता है. Okay? On attaining it क्या होता है, male gonads जैसे कि testis male gamete यानी कि sperm produce करना शुरू करता है. Okay? And the female gonad जो कि ovaries हैं, they start producing the female gametes or the ovum or egg. Ovum और egg produce करना शुरू करते हैं कौन? Females from their ovaries. Now in addition to the production of the sex cells or the gametes, male gametes and female gametes, और क्या होता है, ये लोग कुछ sex hormones भी release करते हैं इस टाइम में. Okay? In case of male, the sex hormone which is released from their male gonad or testis, that is testosterone. और ओवरीज, फीमेल की ओवरीज से एक नहीं दो सेक्स हार्मोन्स रिलीज होता है, दैट इज एस्ट्रोजन. दोज आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके, नाउ देख लेते हैं कि इंडिविजुअली बॉयज एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी एजेस में क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आते हैं.
Okay, so first in case of boy at puberty, what are the changes? Boys में hair grow होता है under the armpit and pubic regions, मतलब genital areas जो होते हैं वहाँ भी between the thigh region hair growth होना शुरू होता है. Okay, इसके बाद hair also grow on other parts of the body like the chest, face, मूछे होते हैं. फिर बियर्ड हो जाते हैं बॉयज, मूछे दाढ़ी वाड़ी होने लगते हैं इस टाइम में. इसके बाद बॉडी बिकम्स मोर मस्क्यूलर. पहले जो टीनेज के बच्चे हैं जो प्यूबर्टी से पहले जो चाइल्डहुड में रहते हैं, बॉयज आर वेरी थिन लीन बॉडी. ओके, दिस टाइम दे गेन मोर मसल्स, सो बहुत भी ज़्यादा मस्क्यूलर बॉडी हो जाता है. वॉइस जो होता है, वॉइस थोड़ा क्रैक होता है जिसको हम वॉइस चेंज कहते हैं. नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में वॉइस चेंज होता है. उसके बाद जो वॉइस है वो पतला से बहुत डीप हो जाता है, डेप्थ आ जाता है वॉइस में. ओके, देन चेस्ट एंड शोल्डर रीजन जो है वो भी चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है. और पेनिस, टेस्टिस, ये जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है ये भी लार्जर हो जाता है इन साइज. एंड इस टाइम में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंटली, ये टेस्टिस जो है, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करता है. ओके, टेस्टिस स्टार्ट्स टू रिलीज स्पर्म्स, प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड ऑल्सो आफ्टर दैट रिलीज. एंड जो सेक्सुअल ड्राइव्स है या फीलिंग्स है वो भी जो कि एडल्टहुड से एसोसिएटेड वो भी डेवलप करना शुरू होता है. ओके, और ये सब जो चेंजेस है, बॉडीली चेंजेस जो है, वो बॉडीली चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ वन हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज, अर्लियर आई हैव नेम्ड दिस हार्मोन, दिस इज टेस्टोस्टेरॉन. रिमेंबर दिस, जितने भी चेंजेस मेल्स की बॉडी में, बॉयज की बॉडी में होते हैं, that responsible hormone is testosterone. Okay, now in the next slide here we are going to check out what are the changes which are occurring at the time of puberty in girls. boys में हम लोग देख लिए, अब girls में देख लेते हैं. यहाँ भी क्या होता है, pubic region और armpit में hair grow होना शुरू होता है. next जो है वो mammary glands, mammary glands जो है वो भी develop होते हैं. hips area broaden होता है. एक्स्ट्रा फैट जो है वो जगह जगह पे डिपॉजिटेड होता रहता है, जमा होता रहता है. वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक द थाई रीजन, हिप्स रीजन, पहले जो रहता है उससे इस टाइम पे वो ब्रॉड होना, वो एनलार्ज होना, इंक्रीज होना, मसल मास जो है वो गेन होना शुरू होता है. ये छोड़ के जो फैलोपियन ट्यूब है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आई विल कम टू इट लेटर ऑन, यू विल गेट टू नो व्हाट आर दीज पार्ट्स, वेयर दीज आर प्रेजेंट, व्हाट आर देयर फंक्शंस, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे. तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का जो ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स भी एनलार्ज होते हैं, साइज में बड़ा होता है. ओके, और ओवरीज जो है, टेस्टिस से क्या रिलीज हो रहा था, स्पर्म्स रिलीज होगा. तो यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरी यहाँ का फीमेल गोनाड है, तो फीमेल गोनाड ओवरीज दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस ओवम्स और एग्स. ओके, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है. और जो ये ड्राइव्स और फीलिंग्स जो भी है रिलेटेड टू द अडल्टहुड, दे ऑल्सो बिगिन टू एक्सपोज. ओके, एंड दीज चेंजेस आर ड्रिवन बाय वन हार्मोन, दैट इज द ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये जो बॉडीली चेंजेस होता है फीमेल्स की बॉडी में, दैट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन इज ईस्ट्रोजन. और प्रोजेस्टेरॉन जो है, जो हम लोग यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े हैं, यहाँ पर इसका नाम लिए हैं, इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. सो menstruation is being controlled by progesterone hormone. Next, talking about the human reproductive system, फीमेल्स और मेल्स में हम लोग देखें कि प्यूबर्टी में चेंजेस अलग है, सेक्स ऑर्गन्स अलग है. तो ये जाहिर सी बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में होगा. जो कि मेल देख रहे हैं हम लोग, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, डिफरेंट चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, पर्पस इज डिफरेंट. सो दैट इज वाई in case of male and female, different reproductive systems are there. Okay, so first we are going to study about male reproductive system, human male reproductive system. So इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पर कौन सा पार्ट्स, कौन सा ऑर्गन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, ये हम लोग पहले देखेंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज द टेस्टिस. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज नोन एज male
गोनाड, जो मैंने पहले ही आप लोगों से कहा कि टेस्टिस जो है, इसके अलावा, इसके बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो टोटली इनकम्प्लीट है, टोटली इनकम्प्लीट, यूजलेस. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द होल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बाद और जो पार्ट्स हैं, नेक्स्ट कम्स द स्क्रोटम विच इज द कवरिंग ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस मेल गोनाड है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है. दैट इज वाई कवरिंग लेयर मस्ट बी प्रेजेंट एंड दैट कवरिंग लेयर इज नेम्ड एज स्क्रोटम. नेक्स्ट आता है एपिडिडाइमिस. इन सब के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे, तो आप अब सब नाम जान लेते हैं पहले. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द वास्ट डिफरेंस, इट्स ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट. नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल और दो ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दो ग्लैंड्स हैं, और क्या है, पेनिस है. यहाँ पर देख सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर द अदर पार्ट, सेमिनल वेसिकल्स, और बाकी एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. सो फर्स्ट कमिंग टू द टेस्टिस. आप लोग यहाँ पर शेप देखो, दिस इज द टेस्टिस. तो शेप कैसा है आप लोग बताओ. डेफिनेटली इट्स ओवल शेप, एक जैसा शेप है कि नहीं. तो इट्स ओवल शेप्ड ऑर्गन and it lie outside the abdominal cavity of a man. Abdominal cavity जो होता है एक adult man का, उससे बाहर में प्रेजेंट होता है. क्यों होता है इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी मैं. तो पहले बाकी सारी चीज़ जान लेते हैं कि टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है इन केस ऑफ मैन और इन केस ऑफ मेल्स. तो टेस्टिस इज व्हाट, टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मैन. ओके, एंड इसका फंक्शन क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका दो फंक्शन है. फर्स्ट, तो इट प्रोड्यूस द सेक्स सेल्स और द मेल गैमेट्स, दैट इज द स्पर्म. टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एंड ऑल्सो टू मेक द सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन. मतलब इसका दो फंक्शन है, एक स्पर्म प्रोड्यूस करना और दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है, मेल हार्मोन, दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट. ओके, अब ये टेस्टिस, मैंने कहा कि टेस्टिस जो है ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है. ओके, एंड दैट इज नोन एज स्क्रोटम. स्क्रोटम इज द पाउच, मस्क्यूलर पाउच विद इन विच टेस्टिस इज प्रेजेंट. और ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रहता है. ये क्यों रहता है, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो विद इन द एब्डोमेन रीजन दैट इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज वेरी हाई. अगर देखा जाए तो एब्डोमेन के ठीक बाहर जहाँ पर ये टेस्टिस रहता है, वहाँ जो है टेम्परेचर 3 डिग्री कम रहता है, 3 डिग्री सेल्सियस लोअर. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम which is present outside the abdominal cavity, there the temperature is 3 degree lower than the temperature which is present inside the body. तो इस वजह से टेस्टिस जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है एंड विच विल बी सुटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स. अब क्या होता है इसके बाद, द स्पर्म्स तो फॉर्म हो गया टेस्टिस में, फिर ये वहां से बाहर आता है, मतलब हियर द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस. उसके बाद ये बाहर आएगा, बाहर आके ये देखो क्या रीजन है, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस. इसका नाम है एपिडिडाइमिस. और ये क्या है, ये कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. स्पर्म, फिर यहां पर एक ओके, दिस इज द एपिडिडाइमिस. ये कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ पर जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ वो स्पर्म टेम्पररी बेसिस पे स्टोर्ड रहता है. क्या रहता है, वहां पर जमा रहता है, स्टोर्ड रहता है फॉर टेम्पररी पर्पस. फिर वहां से ये स्पर्म, दीज आर कैरिड अवे बाय अ लॉन्ग ट्यूब दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस और ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट. देखो यहाँ से रिलीज होके ये वास डिफरेंस, इसी को स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है. यहाँ पर ये यहाँ तक जाता है. ओके, स्पर्म डक्ट के थ्रू, ये लॉन्ग ट्यूब के थ्रू जाता है. और कहाँ पर ज्वाइन होता है जाके, देखो यूरेथ्रा में जाके ज्वाइन हो जाता है. दिस इज द यूरेथ्रा. और यूरेथ्रा कहाँ से निकल के आता है, यूरेथ्रा आता है यूरिनरी ब्लडर से. दिस इज द ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, वहां से ये यूरेथ्रा आता है. और यूरेथ्रा से ये देखो ये एपिडिडाइमिस जो है, उसके बाद वास डिफरेंस नेम्ड लॉन्ग ट्यूब, दैट वो मिल जाता है जाके इन द यूरेथ्रा, विद द यूरेथ्रा. ओके,
और अलॉन्ग ये जो वास्ट डिफरेंस है इसके साथ साथ दो और ग्लैंड्स हैं जो कि है सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो दोनों ग्लैंड है ये क्या करता है, अपना जो सिक्रीशन है, अपने से जो लिक्विड मटेरियल सिक्रीट करता है वो भी यहाँ पर ऐड कर देता है। वो ऐड करने से क्या होता है, स्पर्म्स कैन बी मोटाइल। स्पर्म्स जो है वो पढ़ाएंगे, मैं बाद में पढ़ाएंगे हम लोग। तो ये स्पर्म्स है, इसका एक टेल होता है, ओके, ये टेल रीजन होता है ऑफ स्पर्म एंड दिस इज द हेड रीजन। याद रखना हमेशा कि टेल रीजन जो होता है, टेल रीजन की वजह से ये मूव कर सकता है। मूव करने के लिए इसको क्या चाहिए, इट नीड्स वन लिक्विड मीडियम, ठीक है। अब ये लिक्विड मीडियम अगर नहीं रहेगा तो ये अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग, ओके। सो ये जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, दे ऐड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म सो दैट इट कैन हेल्प देम फॉर देयर इजी मोटिलिटी और मूवमेंट। एंड ये जो लिक्विड है, द लिक्विड प्लस द स्पर्म्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीमेन। मतलब दैट लिक्विड सिक्रेटेड बाय दीज टू ग्लैंड, दैट मीन्स द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो लिक्विड को सिक्रीट करता है, इस लिक्विड के साथ स्पर्म्स भी रहता है। डेफिनेटली स्पर्म्स आर मूविंग, ये एक थिक लिक्विड बना देता है। स्पर्म्स these are solid, so when these are mixed or these are present within that liquid released from these two glands, तब वो thick liquid बनाता है and that is known as semen, which is a thick liquid. Now the secretions of the seminal vesicles and the prostate gland, they provide nutrition to the sperm, which is very very important. ये seminal vesicle और prostate gland सिर्फ move करने के लिए ही male gametes या sperms को मीडियम, लिक्विड मीडियम सीमेन प्रोवाइड नहीं करता है, मतलब लिक्विड मीडियम प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट भी रहता है जो कि स्पर्म्स को उस लिक्विड से मिल जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा मेक्स अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड द यूरिन। हम लोगों ने देखा था कि वास्ट डिफरेंस जाके यूरेथ्रा से अटैच हो जाता है, तो डेफिनेटली यूरेथ्रा जो है दैट इज द मेन आउटलेट, और इसी से ये कॉमन पैसेज बनाता है। इस यूरेथ्रा, इस पैसेज से ही क्या होता है, स्पर्म्स एंड यूरिन बोथ आर रिलीज्ड, दोनों ही एक साथ रिलीज होता है। नाउ दिस यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन दैट इज नोन एज पेनिस। इस पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा जो है, पेनिस के थ्रू स्पर्म्स रिलीज होता है, दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। पेनिस passes the sperms from man's body or male's body into the vagina of the वुमेन्स बॉडी। अब ये कैसे होता है ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा जब मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी, ओके। नाउ ड्यूरिंग द मीटिंग और व्हेन द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन कम्स, देन दिस मीटिंग हैपेंस, और तभी ये पेनिस से मैन की पेनिस से स्पर्म रिलीज होकर वेजाइना में एंटर करता है, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोग की स्ट्रक्चर देख लो, ये ऐसा दिखता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। फर्स्ट इज द ओवरी, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस था, वैसे ही ओवरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयर आर 2 ओवरीज, ओके। उसके बाद है ओविडक्ट विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब, ये देख रहे हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट, ठीक है। उसके बाद रहता है यूटेरस, दिस इज द रीजन, एंड रहता है वेजाइना, दिस इज द वेजाइना। उसके बाद भी एक पार्ट रहता है सर्विक्स नाम का, मैं पढ़ाऊंगी बाद में, ओके। तो यहाँ पर जो है ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी शेप जो है वो आप लोग देख सकते हो, ये भी ओवल शेप्ड है, एंड दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं रहता है लाइक द टेस्टिस। सो अनलाइक द टेस्टिस, ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द ह्यूमन फीमेल, ऑलराइट, ठीक है। और कहाँ पर रहता है, नियर द किडनीज, किडनी रीजन के आसपास ये ओवरी जो है प्रेजेंट रहता है। एक वुमेन में, मतलब हर एक वुमेन बॉडी में, हर एक फीमेल बॉडी में 2-2 ओवरीज रहते हैं, और ये ओवरीज को ही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन वुमेन और इन केस ऑफ फीमेल ये कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये ओवरीज का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओवरीज। ओवरीज का फंक्शन है फीमेल गेमेट और ओवम और एग, जो भी हम लोग कहें, इसको प्रोड्यूस करना, ओके। और क्या, 2 जो सेक्स हार्मोन्स के बारे में हम लोग, मैंने नाम किया था आप लोगों को,
ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन भी रिलीज करता है, ये दो हार्मोन भी फॉर्म करता है, सिंथेसिस करता है ये ओवरी। सो ओवरी का दो फंक्शन हम लोग जान लिए। ओके, नाउ ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स विच आर नोन एज अनराइप्ड एग। एग जो होता है वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, तब ये क्या होता है, यहाँ पर अनराइप कंडीशन में एग्स जो है वो प्रेजेंट रहता है और वो बहुत ज्यादा नंबर में रहता है विद इन द ओवरी, विद इन ईच एंड एवरी ओवरी। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये फॉलिकल्स जो है इमेच्योर फॉलिकल्स वो मैच्योर होता है, मैच्योर होने से इट फॉर्म्स द राइप एग्स एंड विच इज व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन कम्स। ये राइप जो अनराइप ओवा है, अनराइप एग्स है, ये राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अब देख लें कि एक एक पार्ट क्या होता है। ओवरीज जो है, ओवरीज के ठीक ऊपर क्या रहता है, ओविडक्ट रहता है। मैंने कहा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर लिखा है, दोनों साइड में ओवरी है, तो दोनों साइड में जो ट्यूब लाइक पार्ट है जो ठीक ओवरी के ऊपर में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ओविडक्ट। नाउ दीज आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ओवरीज। ये आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, रेदर एक फनल लाइक पार्ट है, फनल शेप्ड पार्ट, राइट। ये फनल शेप्ड पार्ट से ये ज्वाइंट रहता है और यहां पर जो ओवरीज में जो एग्स प्रोड्यूस होता है, या यहां पर भी जो भी एग प्रोड्यूस होता है वो क्या, वो डायरेक्टली ये फनल लाइक पार्ट के थ्रू ओविडक्ट में जाता है। ओके, सो ओवम रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज इनटू द ओविडक्ट थ्रू इट्स फनल शेप्ड ओपनिंग। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और ओवम, ये जो है रिलीज होके ओविडक्ट तक ये जाता है थ्रू दिस फनल लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो है, यहां पर क्या होता है, यहां पर फर्टिलाइजेशन occurs, okay, in the fallopian tube or in the oviduct। यहाँ पर ये fertilization जो है वो fertilization होता है। Now the two oviducts connect to a bag-like organ known as uterus or womb. This part is known as uterus, okay? So यूटेरस जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो आप लोग, वहां पर ये रिलीज होके यहाँ पर आता है। ओके, एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम और द फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ द यूटेरस इज कनेक्टेड टू अ नैरो ओपनिंग, दिस इज नोन एज सर्विक्स। सो सर्विक्स, ये पार्ट जब और नैरो हो जाता है तब ये सर्विक्स बनाता है। ओके, एंड दिस सर्विक्स टू अनदर ट्यूब दैट इज नोन एज वेजाइना एंड इट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के आउटसाइड में ओपन होता है। अब दिस पार्ट basically receives the sperms released from the penis, from the male. Okay, so penis से जो मेल गैमेट और द स्पर्म्स रिलीज होता है, वो स्पर्म्स कौन रिसीव करता है, दिस वेजाइना। ओके, दिस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनल। यहाँ से बर्थ होता है, बेबी बर्थ होने के बाद इस पार्ट से रिलीज होता है, बिकॉज इट इज थ्रू दिस पैसेज वेयर द बेबी इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूटेरस ऑफ द मदर। यूटेरस में जो है ये इस पार्ट में बेबी टोटली मतलब फीटस बनने के बाद, मतलब फुल्ली ग्रोन बेबी जो है वो इस पार्ट से, वेजाइना से जो है रिलीज होता है। बेबी जो है, मेच्योर बेबी गेट्स रिलीज थ्रू द वेजाइना। ओके, next coming to the fertilization part, how the fertilization takes place. So in human being the internal fertilization takes place. हम लोग जानते हैं कि दोनों fertilization के बारे में हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में, external and internal. So here जो है वो internal fertilization होता है ह्यूमन में। जो sperms होता है, जो कि testis में बनता है in case of male, these are introduced in the vagina of the woman through the penis. कब होता है ये? During the copulation. Copulation is a scientific term and in common term it's about the mating. जब mating होता है तब टेस्टिस से जो स्पर्म रिलीज हुआ था
वो पेनिस के थ्रू निकलता है एंड दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना. ओके, सो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है दिस इज द स्पर्म्स. ओके, अब ये स्पर्म का क्या है, टेल है. यहाँ पर आप लोग देखो कि दिस इज द ओवम, और ये स्पर्म जो है वो मोटाइल होके इस लिक्विड से वो फ्लो करके आ रहा है टुवर्ड्स द ओवम. और ये कहाँ से आएगा, ये जो है ये आएगा यहाँ से, it will enter. Okay, in this way millions of sperms are released into the vagina at one time, and the sperms are highly active and mobile or moving. Mobile in nature. Mobile means move कर सकता है, capable of movement. Okay, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम में, उससे पहले बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है टुवर्ड्स द वेजाइना, towards the ovum, they start to release. Okay, and they are very active and motile by nature, and they move up through the cervix into the uterus. मैंने कहा था कि ये जो नैरो पार्ट है इसको cervix कहा जाता है. This is the cervix. यहाँ से क्या होता है, the sperms move करता है और towards the internal part it starts to move. From the uterus, the sperms pass into the oviduct. अभी यूटेरस तक तो आ गया स्पर्म, इसके बाद ये कहाँ जाता है, towards the fallopian tube और oviduct. ओके, जहाँ पर क्या था, जहाँ पर ये एग्स जो है ओवरी से रिलीज होके ये ओविडक्ट में ही पहुंचा है. Now only one sperm, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं एक ओवरी को फर्टिलाइज करने, तो उसमें से the most deserving sperm, selected sperm will be allowed to have fused. Okay, have fusion. So एक जो sperm है वो फ्यूज करता है किसके साथ, ओवम और एग इन द ओविडक्ट. सो ये फर्टिलाइजेशन जो है ये प्रूव हो गया कि ये कहाँ पर होता है, इन द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. क्या बनाता है ये दोनों, एग और ओवम एंड द स्पर्म, ये मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ fertilization. Okay, and thus the fertilization of the ovum or egg takes place in the oviduct. अब ये पता चल गया कि sperm जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, कि टेस्टिस से sperm रिलीज होके through their penis they are released, and in case of female, in female reproductive part through the vagina they enter. और इसके बाद ये कहाँ जाता है, इसके बाद ये ओवरी में यूटेरस में आता है, यूटेरस ये कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट. अब ये ओवरी जो है, ओवरी से एग रिलीज होके थ्रू दिस ओविडक्ट ये यहाँ तक पहुँचता है. Their fertilization takes place and zygote is formed, and in this way we can say that fertilization of the egg and the ovum it takes place in the oviduct. Okay, so आज के लिए इतना ही. In the next class I'll come up again the rest of the topics, few topics of this chapter. Till then, take care. Thank you.